Hi friends, today we are going to learn the new ideas and religion part 3। दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे द उपनिषद। द उपनिषद आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास। these are the part of the latter वैदिक टेक्स्ट। वैदिक पीरियड में जो टेक्स्ट लिखित रूप में थे उसका अदर पार्ट है उपनिषद। द टर्म उपनिषद मीन्स लिटरली दोज हु सिट नियर and implies listening to the spiritual teacher. One of the most popular verses from the Upanishad is lead me from unreal to real, lead me from darkness to light, lead me from death to immortality means उपनिषद का टर्म क्या है? द टर्म उपनिषद मीन्स लिटरली दोज हु सिट नियर एंड implies listening to the spiritual teacher. The fundamental message of the Upanishad is its emphasis of the meditation. Fundamental message Upanishad is emphasis of the meditation. Meditation देने का ये संदेश दे रहा है हमें उपनिषद। The author of the Upanishads considered that the both atom, individual soul, and the Brahman, the universal soul, were one. The soul is identified by the Brahmanas as God, and the soul of made of the everything as one become the dear god. Door god of become god, the door of the evil become evil. Other words in the action कर्मा गॉड दोनों इनमें से इन्वर्टेड है। और यहाँ पे स्टोरी ऑफ उपनिषद की छोड़ दिया है कि जानते हो कि उपनिषद मीन्स क्या है? हैप्पीनेस। मेनी सेंचुरीज एगो, बहुत सेंचुरी पहले, श्वेतकेतु आस्क्ड हिज फादर what was the mean by happiness? happiness का मतलब क्या है? his father replied this that one the sin of the happiness का क्या है वो बता दे कि एक सॉन्ग है is that the person who is happy become active. जो वही हैप्पी रहता है वो एक्टिव होता है। वन ऑफ द डज नॉट फाइंड हैप्पीनेस इज नॉट एक्टिव। अगर वो हैप्पीनेस ही नहीं ढूंढ पाया तो एक्टिव भी नहीं हो पाता। दैट इज नो ट्रू जॉय वॉट ऑफ स्मॉल और infinite and along with the happiness. True. Swetaketu told his father that he wanted to understand this better. His father told him that he should then listen to him carefully and try to understand. जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो अच्छे से और फिर समझ कर काम करना. When a person see that no one separate from him, जो कोई आदमी खुद को नहीं सेपरेट कर सकता, that he was one of the all people, animal and object in the universal. universe मतलब पूरी दुनिया में. When a person does not see, hear and know anything else that the infinite मतलब वो अपने से और किसी को ना देख पाता है ना सुन पाता है, वही उसका हैप्पीनेस है. दिस इन्फिनिट लास्ट फॉर, और वही हमारा अंत तक रहना चाहिए. एल्सवेयर, इस पूरे लेसन में हमने क्या पढ़ा? समरी टाइप देखेंगे. जोरास्ट्रियर एंड द जोरास्टर और द जोरास्ट्रा was an ancient Iranian prophet. It was the founder of Zoroastrianism. God in Zoroastrianism is called Ahura Mazda. In Zoroastrian belief that there is a constant battle between God and evil. It regard fire as symbol of God. Therefore, rituals are symbol of fire. मतलब फायर को ही वो भगवान मानते थे जोरास्ट्रियन वाली. In last part of this lesson, conducted before the sacred life, the Zen Avesta is the sacred text of Zoroastrianism. Zen Avesta is the sacred text of the Zoroastrianism. The followers of the religion are called the Parsis. In this Indian subcontinent, they come here about 1000 years ago. वो हमारे 1000 ईयर पहले हमारे इंडिया में आए थे. They have immigrated into the land but at the same of them maintain their own identities. फिर उन्होंने लैंड तो ये मेंटेन कर दिया था, उसके साथ में उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी भी बना दी थी. दे हैव नो सोशल एंड फैमिली विद द पार्सियन इन द ईरान डू नॉट शेयर रिसेंट हिस्टोरी विद देम. और उन्होंने अपनी हिस्ट्री किसी को शेयर भी नहीं कर दी. डू यू नो विल ऑफ लाइफ का विल कैसे हुआ है वो देख सकते हो आप. बुद्धिस्ट शेयर विद द हिंदूज एंड बिलीव इन द लाइफ ऑफ
wheel of life. These believed to be continuous circle of breath and repeat that traps people who have not yet achieved the nirvana. Nirvana, the spokes of the wheels remind Buddhists of the eightfold path. eightfold path वो यहाँ पे पिक्चर दिखा दिए, 6 जन है। eightfold path किसको बोलते हैं? एट अभी ग्लोसरी में हम देखेंगे नेक्स्ट में। अहिंसा का मतलब क्या है? द बिलीव ऑफ द प्रैक्टिस इज नॉट हंटिंग एंड किलिंग लिविंग एनिमल। किसी से हमें हंटिंग और किलिंग नहीं करनी किसी भी एनिमल को। आश्रम, द फोर स्टेज इन टू विच द लाइफ वॉज डिवाइडेड। आश्रम में हमारी लाइफ 4 टाइम डिवाइड हुए दिखे हैं, वो 4 आश्रम के नाम दिए हैं। आत्मन, द इंडिविजुअल सोल दैट लेटेस्ट। आत्मा मीन्स इंडिविजुअल सोल दैट लेटेस्ट इवन आफ्टर डेथ। डेथ के बाद में वो सोल हमारा जहाँ जाता है उसको बोलते हैं आत्मा। बिकॉज रेसिडेंट ऑफ द संघा हु सर्व्यूड बिगिंग एंड द टॉट अदर्स। वो जो लोग होते हैं जो बुद्धिस्ट का मैसेज स्प्रेड करते हैं। बेकिंग मतलब भीख मांग के खाना या मीन्स मांग कर खाते हैं, और टॉक मतलब सिखाते हैं, उनको मैसेज स्प्रेड करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। असेंटिक, समवन हु लिव्स एंड लाइफ मेडिटेशन अवे फ्रॉम द अदर्स। जीने दो, जियो और जीने दो, मेडिटेशन फ्रॉम अवे अदर्स। ब्राह्मण यूनिवर्सल सोल है वो। मोनास्ट्री, शेल्टर और बुद्धिस्ट मोंक, उनका शेल्टर रहने की जगह है। एंड ताना मीन्स थ्रस्ट ऑफ द नेवर एंडिंग डिजायर एंड वॉन्ट्स। ओके, अब दिस लेसन इज कंप्लीट। द न्यू आइडियाज एंड रिलीजन। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए। नाउ लेसन इज ओवर। थैंक यू।